Hello. Good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon, sir. कुणाल जी एनएचए से हैं Yes, क्या? yes, yes. ओके सो कुणाल जी you will be providing training or anyone else would be joining as well? I will provide. Okay. So let's wait for 5 more minutes so Okay, that remaining states users may join, and then we will start. okay. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you for Yes, sir. confirming. Good afternoon and welcome to this training session.
The training session has been organized for all state nodal officers, including facility managers of their state, on how to create HFR ID. So, Sir, not audible. is the requirement for you. Tanuja, maybe network issue at your end. Sir, your voice is not clear. Yeah, good afternoon, Kunal sir. Good afternoon. Sir, Yes. Hello. sir, you have detailedly explained HFR ID Yes. on 16 September. Okay. Sir, today you will present with detail or some instruction will be followed. I will explain via presentation how to create HPR, how to create HFR. If you have any doubt, so I will free to Okay, sir. answer Okay, to sir. your questions. Can we start? Hello. Sir, someone from Okay. ministry side, Mr. Tarun Agrawal left due to Okay. So we technical will wait problem for or him. network problem. Let them join, please. Hello. Yes, sir. You are audible. Yeah, you are audible, Tarun sir. Okay. Okay, sir. Okay. So, Kunalji, you are requested to start the presentation and start giving the training. Thank you. Hope my screen is visible. Yes, visible, sir. Visible. Okay. Yes, Kunalji. The screen is So visible. HPR and HFR is Healthcare Professional Registry and Health Facility Registry. So we have merged both the portal into single portal, which is named National Healthcare Providers Registry. So in Ayushman Bharat Digital Mission, we have four building block mainly. First is Aadhaar number. Every citizen can create their Aadhaar number. This is voluntary in nature. 14-digit unique ID. This is based for unique identity of the health any citizen as well as to keep the record. So based on this Aadhaar number, you can share your record with the doctors. Second is healthcare professional registry, means doctors and nurses, yoga and naturopathy pharmacist registry. So we have list of verified professional 14-digit unique ID we are providing based on the verification. And third is health facility registry. So every hospital, clinic, blood bank, diagnostic lab can register in HFR. We are providing 12-digit unique ID.
and last is drug registry, which is under development, not launched till date. So NHPR basically a comprehensive repository of healthcare professional and health facility. Means एक healthcare professional है या health facility है, both can register into the same portal. So healthcare professional like doctors and nurses currently registered. Soon we will start the pharmacist also and yoga and naturopathy also. For doctors, modern medicine, dentistry, Ayurveda, Unani, Sova, Rigpa, Siddha, homeopathy, and nurse professional can register currently. And health facility like hospital, clinic, diagnostic lab, imaging center, pharmacy, and blood bank can register. And NHPR is a single source of truth because all the data is verified by the respective council or state government. So once your application is verified, then we are providing 14-digit unique ID. So NHPR currently only for doctors and nurses and hospital, clinic, diagnostic lab, blood bank, pharmacies. So why NHPR? Because prior to NHPR, there was no universal database, lack of trust, transparency, because in state council to national council, data is moving into the Excel sheets. Now, maximum council having online portal, and we have NHA has supported to maximum all the councils for their digitalization. Now, HPR is we are covering public sector and as well as private sector. Means every public and every private sector can register here free of cost. This is voluntary in nature, and we are covering across system of medicine. Means चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सोवा रिक्पा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, नर्स काउंसिल हो, या फार्मासिस्ट हो, allied healthcare professionals हो, we are covering every type of system of medicines, and we are integrating with all the councils. नेक्स्ट इज कवर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. मीन्स आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं या नर्स हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं. एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटियर इन नेचर, एंड डेटा इज अप टू डेट हियर. बिकॉज कभी भी आपको डिग्री अपडेट कर लेते हैं या आप आधार में जाके नाम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको री-KYC करना होता है. नेक्स्ट इज ऑडिट लॉग इज हियर. इट मीन्स आप कुछ भी अपडेट करते हैं, हमारे पास ऑडिट लॉग होता है, लास्ट टाइम आप पोर्टल पे कब आए एंड व्हेन यू हैव अपडेटेड योर इन्फॉर्मेशन, एंड एवरी डेटा इज वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गवर्निंग बॉडी. सो नाउ व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ NHPR. मैं NHPR में रजिस्टर क्यों करूँ, रजिस्टर करता भी हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होगा. फर्स्ट इज ऑनलाइन प्रेजेंस. मीन्स योर विजिबिलिटी विल बी विजिबल. आप अगर एक डॉक्टर हैं और अगर सिटीजन को दिखता है ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उनके लिए भी बेटर रहता है और एक डॉक्टर के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बेटर रहता है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस है. तो कोई भी सिटीजन आके नो योर डॉक्टर, यहाँ पे फीचर है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आके सर्च कर सकता है वेदर माई डॉक्टर इज वेरीफाइड और नॉट, उनका क्वालिफिकेशन क्या, उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, सो ही कैन वेरीफाई. सेकंड इज यूनिक एंड ट्रस्टेबल आइडेंटिटी. सो वी आर प्रोवाइडिंग 14-digit यूनिक ID, जो कि एक यूनिक ID है हर डॉक्टर का. वो इंडिया के बाहर भी वैलिड है और इंडिया में भी वैलिड है. नेक्स्ट इज टेली कंसल्टेशन. We are providing tele consultation feature via UHI, Unified Health Interface platform. Next is digital certificate. Once your application is verified by the respective council, so आप digital certificate को download कर सकते हैं. Next is digital facility certificate. Digital facility certificate is once your application is verified, means आपका एक अगर facility verified हो जाती है, तो आप एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. अदर बेनिफिट्स लाइक UHI मीन्स आप टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल मीन्स यू कैन पार्टिसिपेट outside India, you can practice outside India as well via this portal. And last is medical certificate. So all the modern medicine doctors currently provide the medical certificate to the patient. These are the major benefits of NHPR. Now registration process. So we have merged both the portal HPR and HFR into a single portal, which name is National Healthcare Provider Registry. There are 3 roles. First is healthcare professional, second is facility manager, and third is healthcare professional and facility manager. So एक डॉक्टर है या नर्स है, तो they can register via roll number 1 as a healthcare professional. If roll number 2 is फैसिलिटी मैनेजर, अगर वो फैसिलिटी मैनेजर है तो मीन्स अगर वो डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है, सो दे कैन रजिस्टर एज ए फैसिलिटी मैनेजर. एंड रोल नंबर 3 मीन्स अगर आप डॉक्टर भी हैं और फैसिलिटी मैनेजर भी हैं, सो यू कैन रजिस्टर एज ए रोल नंबर 3. एंड दिस इज द QR कोड, जो भी अगर आप स्कैन करना चाहें आप स्कैन कर सकते हैं. ट्रेनिंग के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं.
So portal URL is nhpr.abdm.gov.in, login/registration button. Click here. Then you can register via आधार नंबर. यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है. क्लिक ऑन द आई एग्री कैप्चा. देन वन OTP विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. OTP आपको 6 डिजिट का आपके मोबाइल पे आएगा. आपको सबमिट करना. जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिकेशन एड्रेस सभी आधार से आता है. आप इस नाम को चेंज नहीं कर सकते, जेंडर चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते. वी आर टेकिंग फ्रॉम आधार ओनली. नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर. यू नीड टू क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन. ईमेल ID. देन यू नीड टू सिलेक्ट द रोल. अगर आप सिर्फ डॉक्टर या नर्स हैं तो सिलेक्ट द रोल नंबर 1. अगर आप सिर्फ फैसिलिटी मैनेजर हैं तो रोल नंबर 2. इफ़ यू आर ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी मैनेजर सो यू कैन सिलेक्ट रोल नंबर 3. तो उसी हिसाब से आपके पास फॉर्म आएंगे आगे. फर्स्ट इज कैटेगरी. कैटेगरी आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं तो आप सिलेक्ट करें. सब कैटेगरी मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिक्ता, सिद्धा आ जाएगी. नर्स के केस में नर्स की सब कैटेगरीज आ जाएंगी. हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID है, यूनिक ID है, लॉगिन ID, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है. देन सबमिट. नाउ आई हैव सिलेक्टेड द रोल नंबर 1 मीन्स आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल ओनली. मतलब मैं एक फैसिलिटी मैनेजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फैसिलिटी पे काम करता हूँ और मैं डॉक्टर हूँ. तो मेरे को डॉक्टर वाला फॉर्म आएगा. टाइटल बाय डिफॉल्ट डॉक्टर. लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु. आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल. एड्रेस आएगा आधार से. सेव एंड नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन डिटेल. सो रजिस्टर्ड विद काउंसिल. कौन सी काउंसिल से आप रजिस्टर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, रिन्यूअल है या परमानेंट है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल. अटैचमेंट आपको डालनी होगी. जो भी आपके स्टेट काउंसिल की डिटेल है वो आपको डालना है यहाँ पर. If your name is different in the Aadhaar and registration number, so you can provide the supportive document. Supportive document can be a marriage certificate or legal court affidavit. Up to 5 MB you can upload. Next is qualification. अगर आप मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं तो यू कैन अपलोड द MBBS डिग्री. इन केस ऑफ आयुर्वेदा BAMS डिग्री. इन केस ऑफ यूनानी BUMS डिग्री. सो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालनी है. स्टेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जाम जिस भी ईयर में आपने पास आउट किया है. अटैचमेंट. देन अगर नेम डिफरेंट है आधार और डिग्री में तो आप यू कैन अपलोड द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बिकॉज बेस्ड ऑन द दिस ओनली काउंसिल विल वेरीफाई योर डिटेल. यू कैन आल्सो पुल फ्रॉम द डिजी लॉकर. You can add the additional qualification also if you have done any additional qualification. Then save and next. Next is work detail. Are you currently working or no? If you are not working, you are a PG student, registration detail should be there. Next is, are you currently working? Suppose yes, so you are working in the government sector, private or both. In case of government, system will ask whether you are a central government employee or state government. In case of central government, so under which ministry you are working. Then attachment. Attachment is recent payslip, appointment letter or transfer order. In case of state government, only attachment is mandatory. If you are a government employee, so facility declaration is mandatory. प्राइवेट के केस पे नहीं है फैसिलिटी डिक्लेरेशन मैंडेटरी, लेकिन गवर्नमेंट के केस में आपको बताना पड़ेगा कौन सी फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं ताकि वेरिफिकेशन हो पाए. नेक्स्ट इज प्रीव्यू प्रोफाइल. You have completed all the 3 pages. Now you can preview what you have filled up in the last 3 pages. Then e-sign. E-sign is Aadhaar number you need to enter. Then OTP will be sent to your registered mobile number. Then submit. आपके पास एक PDF आ जाएगी, डाउनलोड करके आप रख सकते हैं. आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है रिस्पेक्टिव काउंसिल को. So once your application is verified, you will get this verified. अब आपके पास ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं लेफ्ट मेन्यू. एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं. व्हाट आर द फीचर्स आफ्टर वेरिफिकेशन. So first is participate in healthcare workforce mobility, means I can practice outside India as well. Next is issue medical certificate. A modern medicine doctor can issue the medical certificate. So मेडिकल सर्टिफिकेट एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर इशू कर सकता है. नेक्स्ट इज HPID कार्ड. यू कैन डाउनलोड योर HPID कार्ड. जैसे आधार कार्ड है, आभा कार्ड है, उसी टाइप से हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को HPID कार्ड देते हैं डाउनलोड करने के लिए. नेक्स्ट इज नो योर डॉक्टर. एनी सिटीजन कैन सर्च वेदर माई डॉक्टर इज वेरीफाइड और नॉट. आप ही अपना वेरिफिकेशन देख सकते हैं. हम यहाँ पे मल्टीपल सर्च दिए हुए HPID से सर्च कर सकते हैं. डॉक्टर, नर्स, नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट इज डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट. यू कैन डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट, प्रिंट कर सकते हैं एंड पुट अप कर सकते हैं, योर फैसिलिटी में लगा सकते हैं. इस QR कोड से पता लग जाता है सिटीजन को कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, एंड गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं. नेक्स्ट इज एडिट प्रोफाइल.
You can edit your mobile number anytime. You can change your email ID. You can upgrade your role from roll number 1 to 3. Suppose आज मैं डॉक्टर हूँ, कल को मैंने अपनी ओपन फैसिलिटी ओपन कर ली, तो आई कैन स्विच माई रोल. नेक्स्ट इज आई कैन चेंज माई पासवर्ड एनी टाइम वाया ओल्ड पासवर्ड, वाया आधार OTP और मोबाइल OTP. I can add my additional qualification anytime later also. I can do re-KYC also. Suppose मैंने अपना नाम चेंज कर लिया आधार में, या जेंडर चेंज हो गया, या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कराई, एड्रेस चेंज हो गया, so I can do re-KYC. So now this is the verification process. All the state government verification will be verified by the state government verifiers. हर स्टेट में हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी ओनली. सपोज कोई एम्स दिल्ली में काम कर रहा है, एम्स सरिता विहार में काम कर रहा है, तो एम्स सरिता विहार का ही लॉगिन आईडी जिनके पास होगी एडमिन वाले, वही वेरीफाई करेंगे. नेक्स्ट इज प्राइवेट. इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, काउंसिल विल वेरीफाई. In case of both means like Mizoram state where practice is allowed in the private sector also if you are a government employee, so वहाँ पे government ही verify करती है. So this is the basically verification process. I will not cover in the detail verification process. तो हर स्टेट में अपना स्टेट नोडल ऑफिसर है, वो मॉनिटरिंग करते हैं, स्टेट वेरीफायर वेरीफाई करते हैं. नाउ आई विल कवर द सेकंड पार्ट, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, जिसके लिए सेशन रखा गया है कि एक फैसिलिटी को कैसे रजिस्टर करना है. सो फॉर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर होना मैंडेटरी है. अगर आप किसी फैसिलिटी को रजिस्टर कर रहे हैं तो रोल नंबर 2 और 3 होना मैंडेटरी है. रोल नंबर 2 मीन्स आई एम ए फैसिलिटी मैनेजर. अगर आप डॉक्टर नर्स नहीं है तो, अगर आप डॉक्टर नर्स भी हैं तो रोल नंबर 3 सिलेक्ट करना है. ऐड ए न्यू फैसिलिटी पे क्लिक करना है. यहाँ पर आपको, अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोग्राम में लिंक है, लाइक PMJY में आपकी फैसिलिटी रजिस्टर है, रोहिणी में है, तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए, सर्च करिए. अगर आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है आपकी फैसिलिटी, सो यू कैन एंटर डायरेक्टली पिन कोड. पिन कोड डालिए, लोकेट करिए, मैप माई इंडिया में आपकी फैसिलिटी कहाँ पर है. ये मैप माई इंडिया का जैसे गूगल होता है मैप, वैसे ही मैप माई इंडिया का मैप खुलता है. फैसिलिटी का नेम करेक्ट डालिए, कंट्री स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगी मैप से, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगी, सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगी. नाउ यू नीड टू एंटर फैसिलिटी मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है. देन आपकी फैसिलिटी की ओनरशिप, आप गवर्नमेंट फैसिलिटी है, आपकी प्राइवेट है या PPP मॉडल है, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं. फैसिलिटी टाइप आपका हॉस्पिटल, फैसिलिटी जो है हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, ब्लड बैंक है, डायग्नोस्टिक लैब है, सब टाइप, एज वेल एज फैसिलिटी ऑपरेशनल स्टेटस, फैसिलिटी फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सर्विसेज, आप OPD सर्विस प्रोवाइड करते हैं, IPD या डे केयर. बेस्ड ऑन दिस फॉर्म नेक्स्ट फॉर्म विल ऑटोमेटिक कम. लाइक मैंने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया तो माय सर्विस एंड स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल की आ गई. अब उसमें मैंने मॉडर्न मेडिसिन सेलेक्ट किया था इसमें, तो मॉडर्न मेडिसिन का आ गया मेरे पास कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, विदाउट ऑक्सीजन कितने, वेंटिलेटर कितने, विदाउट वेंटिलेटर कितने. नेक्स्ट इज आपके ऑपरेशनल के टाइमिंग क्या क्या है, 24/7 है या शिफ्ट में है. फैसिलिटी बिल्डिंग फोटोग्राफ, बोर्ड फोटोग्राफ नॉन मैंडेटरी है, बट अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा फॉर वेरिफिकेशन. आपकी अगर फैसिलिटी किसी और प्रोग्राम में भी लिंक है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं. रिव्यू करिए क्या क्या आपने फिल किया है, कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं. और यहाँ पे आप कंसेंट दे सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, उतनी ही चीज़ें हम पब्लिक को दिखाते हैं जितने पे आपने कंसेंट दी है. सो नेक्स्ट इज आधार नंबर, OTP. देन आपकी एक PDF जनरेट होती है फॉर फाइल पर्पस. Once your application is submitted, you can get this facility ID number. 12 डिजिट का रहता है, ये IN से स्टार्ट होता है. देन once your facility is approved by the district verifier, तो ये आपकी फैसिलिटी अप्रूव्ड होती है, आपको ईमेल आ जाती है, SMS आ जाता है, और एक सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अनदर फीचर्स क्या क्या है, अगर आप ABDM कंप्लाइंट फैसिलिटी है तो सॉफ्टवेयर लिंक कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड आपके डिजिटली लिंक होना चालू हो जाए. HRP ब्रिज ID होती है. HRP ब्रिज ID कौन देता है, हमारा HIMS प्रोवाइडर, जिसका सॉफ्टवेयर हम अपने हॉस्पिटल पे यूज़ कर रहे हैं. अगर वो ABDM कंप्लाइंट है तो आप यहाँ पे HRP ब्रिज ID डाल दीजिए. अगर नहीं है तो आप अपने सॉफ्टवेयर पार्टनर को बोल सकते हैं कि आप ABDM कंप्लाइंट होइए. नेक्स्ट इज जनरेट QR कोड. अगर आपकी हॉस्पिटल में क्यूज लगती हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो आप यू कैन जनरेट योर QR कोड और इस फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं. कोई भी पेशेंट आएगा, अपना आभा को स्कैन करेगा तो ईजिली टोकन जनरेट हो जाएगा.
लाइनों में ज़्यादा आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ती सिटीजन को कि मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, या मेरा मोबाइल नंबर ये है, घर का एड्रेस ये है। ऑटोमेटिक आ जाता है सब कुछ, तो टाइम कम लगता है, क्लिनिकल एरर बचती हैं, टाइपो एरर बचती हैं। नेक्स्ट इज एड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एक फैसिलिटी भी प्रोफेशनल को लिंक कर सकती है। अभी हमने लास्ट में देखा था एक प्रोफेशनल ने फैसिलिटी में लिंक किया था कि मैं यहाँ काम करता हूँ। इसी टाइप से एक फैसिलिटी मैनेजर भी लिंक कर सकता है कि मेरा ये प्रोफेशनल है, ये मेरी फैसिलिटी पे काम करता है। लाइक HPID मुझे किसी की पता है तो मैं सिर्फ HPID से सर्च कर सकता हूँ, या मुझे नेम एंड मोबाइल नंबर पता है तो मैं सर्च कर सकता हूँ। वहाँ मैं उसका डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट डाल दूंगा तो उनके पास मैसेज चला जाएगा कि ये फैसिलिटी आपको बोल रही है कि यू आर वर्किंग इन माई फैसिलिटी। तो जैसे ही वो डॉक्टर होगा वो भी ओपन करेगा HPR में जाके, वो यस करेगा, यस आई एम वर्किंग इन यूर फैसिलिटी। जैसे ही वो यस करेगा तो एक लिंकेज बन जाता है दोनों का कि ये डॉक्टर इस फैसिलिटी पे काम कर रहा है, और सेकंड केस ये फैसिलिटी के अंदर ये डॉक्टर काम कर रहा है। एंड लास्ट स्टेप इज ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अगर कोई भी फैसिलिटी मैनेजर ट्रांसफर हो जाता है या कुछ सडनली कुछ डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो फैसिलिटी ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटी ट्रांसफर का केस है कि कोई भी फैसिलिटी मैनेजर दूसरे प्रोफेशनल को, जब भी कोई केटी होकर नॉलेज ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे ये भी पार्ट होना चाहिए फैसिलिटी का कि जब भी आप जाएं तो अपनी फैसिलिटी को किसी और HPID में जाकर ट्रांसफ़र करें, ताकि सारे रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएं और फैसिलिटी में जितने प्रोफेशनल हो वो भी दूसरे की ID में दिखें। सो इस टाइप से ये ट्रांसफ़र होता है। जिसकी ID में ट्रांसफ़र करना, वो जैसे ही वो अप्रूव करेगा यस आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फैसिलिटी को वेरीफाई करने के लिए भी हमारे पास स्टेट मिशन डायरेक्टर उसको मॉनिटरिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर उसको मॉनिटरिंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वेरीफायर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेरीफायर होता है, वो वेरीफाई करता है कि ये फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और फैसिलिटी मैनेजर जो है वो ओनर है फैसिलिटी का, जिसने फैसिलिटी क्रिएट करी है। इसी टाइप से सिमिलर नेशनल नोडल ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी के लिए हैं, नेशनल वेरीफायर्स हमारे पास हैं, और फैसिलिटी मैनेजर जिसने फैसिलिटी क्रिएट करी है। सो दिस इज़ द HPR QR कोड, अगर कोई स्कैन करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड हमारे पास अनदर पोर्टल्स भी हैं कुछ, लाइक नेशनल डेंटल रजिस्टर, हमने डेंटल काउंसिल के लिए खुद ही पोर्टल बना के हमने टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और हमने HPR के साथ मर्ज किया हुआ है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर भी हमारे डेवलप किया हुआ पोर्टल है जो कि HPR के साथ लिंकेज है। हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी, कोई भी प्रैक्टिशनर चाहे वो आयुर्वेदा का हो, यूनानी का हो, मॉडर्न मेडिसिन हो, वो इस पोर्टल के थ्रू प्रैक्टिस कर सकता है आउटसाइड इंडिया। एलाइड HPR जितने भी लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो इस पोर्टल पे आके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। अगर ये प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे, कोई भी एलाइड के प्रोफेशनल आपकी फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं तो उनको बोलिए यहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हैं। एलाइड इंस्टीट्यूट अगर आपके कॉलेज के अंदर है, आपके यहाँ पर है, तो वो भी इंस्टीट्यूट को भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए अलग पोर्टल बना हुआ है। ये जो पोर्टल है NCHP के साथ में एक्ट के हिसाब से बने, नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क फ्रीली। अगर कहीं भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू कुणाल जी। नोडल ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम शेयर कर देंगे सभी के साथ। The presentations will be shared with all state nodal officers that can be disseminated further with all facility managers. But as of now, if you have any queries, you may please ask. सर दिस इज HMIS मैनेजर फ्रॉम छत्तीसगढ़, श्रीनिवास। सर अगर कोई जो डॉक्टर है अगर प्राइवेट संस्था में पहले काम कर रहा है और उसका HPR ID वहाँ पर उसके HFR से जुड़ा हुआ प्राइवेट संस्था में, एंड करंट सिचुएशन में वो एक गवर्नमेंट संस्था से जस्ट ज्वाइन हुआ है, तो फिर वो उसको HPR वहाँ पर लिंकेज कैसे होगा प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट फैसिलिटी में? हेलो, हेलो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? Sir, if a doctor has previously been working in a private organization ओके, and its HPR is linkage with the private institute HFR, ठीक है, so he is just now joined in the government facility. Now ओके। he wants to shift his HPR from private to यस, government ही कैन facility. चेंज द वर्क डिटेल एनी टाइम। अब वर्क He डिटेल can पे जाइए, change. वहाँ से प्राइवेट को गवर्नमेंट कर दीजिए। Okay, and how he can link
to the government जैसे facility ही आप HPR? गवर्नमेंट करेंगे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जिस फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं उसको सर्च करिए नाम से, सपोज एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली सर्च करिए, आपको फैसिलिटी दिख जाएगी, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट डाल के डिक्लेयर कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये HPR के लॉगिन पे ही दिया रहता है सर, यस, जो आप बताएं? एचपीआर के ठीक थर्ड पेज पे आता है। ठीक, ओके, जब थैंक आप एनएचपीआर पे लॉगिन करेंगे लेफ्ट मेन्यू पे जाएंगे, एचपीआर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री दिखेगा, उसके थर्ड जी पेज में जाके सेव एंड नेक्स्ट करके थर्ड पेज पे जाइए, बैंक डिटेल पे वहाँ चेंज कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, Anyone else is having any queries regarding HFR creation, HPR creation? सो एक क्वेरी आई है चैट पे कि अगर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर इज नॉट अवेलेबल इन अ फैसिलिटी, then whom credentials should be used? So doctor's credentials can be used as a facility manager. Nodal officer of the state will be responsible for nomination of facility manager from each facility. So that is the responsibility of state nodal officer. And if a facility is not having a facility manager, then doctor's credentials can be used. Okay. Any other query you may please ask or uh, type in the chat. Sir, sorry to interrupt in between what the last doubt which you have replied. If the facility manager is the doctor only and doctor's position is vacant and the second in line person is pharmacist, then how we can designate the currently facility you can manager? create as a roll number 2 as a facility manager. For pharmacists currently we are not registering. Rule number two, I am a we have to facility create a manager. dummy nodal officer, you are suggesting. अगर आप फार्मासिस्ट हैं और फैसिलिटी मैनेजर हैं तो आपको रोल नंबर 2 सिलेक्ट करना है। Rule number two, okay. हाँ, और फ्यूचर में जब हम फार्मेसी स्टार्ट करेंगे भी 1 महीने बाद, तो आप स्विच कर सकते हैं रोल नंबर 2 से 3 में। आई एम ए प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी मैनेजर। फार्मासिस्ट इसी पोर्टल पे आएगा अभी 1 महीने बाद। Okay, sir. Thank you. ओके, किसी क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉई है तो वो प्राइवेट सेक्टर ही चूज करेंगे। दूसरा ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसने एचएफआर आईडी क्रिएट कर रखी है उनको दोबारा से आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एचएफआर सिर्फ If an एक ही होगा, एक फैसिलिटी मैनेजर ही होता HFR है, has been दोबारा मल्टीपल if क्रिएट मत HFR करिए। has been created, no requirement to create multiple HFR IDs for one facility. Only one HFR ID. आधार कार्ड के रिगार्डिंग ये कोई क्वेरी आई है। अभी आधार कार्ड के लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर बात ये केवल हो रही है फैसिलिटी मैनेजर या डॉक्टर के लिए, और उनको आधार कार्ड देना कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पेशेंट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ फैसिलिटी मैनेजर या डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो वो तो आधार कार्ड देंगे। एनएचएम एम्प्लॉयज गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ही करेंगे, प्राइवेट के हैं तो प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। Any more questions from state nodal officers? So regarding HFR, there is no query from Uttarakhand. Okay, sir. Thank you.
So we wind up this meeting. Presentation given here will be shared with the nodal officers. Nodal officers are requested to further share those this presentation to each doctor and under their state. Thank you so much, Kunalji. Thank you, all the state users. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you.